یہ ہے کہ میں پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کراچی کی نائب صدر بھی ہوں، تو اس حوالے سے بھی ہم پروگرام مرتب کرتے رہتے ہیں اور مشاعرہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے، اور مزید یہ کہ بیٹھک ہوتی رہتی ہے، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور ادب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس گفتگو میں بھی ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے ادب و فن کا ایک رسالہ، میں اس کی بیورو چیف ہوں، اور مزید یہ کہ اردو لٹریری ایسوسی ایشن کی میں جنرل ڈپٹی سیکریٹری بھی ہوں، اور دی سارنگز آرٹ ویلی اس کی میں چیئر پرسن ہوں۔ تو اس طرح سے بہت سارے کام جو ہیں وہ میرے ذمے ہیں جن کو میں نبھا رہی ہوں، اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ جو گھریلو میری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مجھ پر بہت اچھے طریقے سے جو عائد ہیں ان کو بھی بھرپور کوشش کرتی ہوں نبھانے کی۔ ایوارڈز تو میں سمجھتی ہوں بہت کافی زیادہ ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور میرے ہسبینڈ کا ساتھ ہے، میرے بچوں کا ساتھ ہے، جس کی بدولت میں کام کر سکتی ہوں، اور اس کا ریوارڈ اس صورت میں بھی ملتا ہے کہ درس و تدریس میں مجھے ایک ایوارڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ملا ہے، بیسٹ ٹیچر کا۔ مزید یہ کہ وہاں پر جب ضرب عزب کا ایک سلسلہ تھا اور وہاں پر میں نے ایک نظم کہی تھی، تو اس حوالے سے ایوارڈ ملا مجھے، اور اس کے علاوہ مختلف کانفرنسز میں ایوارڈز ملے۔ تو یہ سلسلہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں خدا کی کہ اس نے مجھے اس کے لیے استعمال بھی کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مشاعرے اور عالمی مشاعرے، بعض اوقات گھروں میں چھوٹی نشستیں ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مشاعرے پڑھتے ہیں، بعض اوقات مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ مشاعرے کرواتی ہیں، ان کے ساتھ بھی، اور عالمی مشاعروں میں بھی شرکت کا موقع ملا، اور صرف شرکت ہی کا موقع نہیں ملا ہے بلکہ اس میں مجھے نظامت کے فرائض انجام دینے کا موقع ملا ہے، اور یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہاں بہت اچھے بڑے لوگ جو باہر کے ممالک سے بھی تشریف لاتے ہیں، مختلف شعراء، اور ہمارے اندرون نے ملک اور اس کے علاوہ مختلف شہروں سے، تو پاکستان کے لیول پر، عالمی مشاعروں کے لیول پر، ان تمام سطح پر میں نے نظامت کے فرائض بھی انجام دیا ہے، اور ایز اے شاعرہ بھی کوشش کی ہے کہ کچھ مسکراتے ہیں کبھی آنکھ بھی نم رکھتے ہیں، مسکراتے ہیں کبھی آنکھ بھی نم رکھتے ہیں، اس طرح سے بھی محبت کا بھرم رکھتے ہیں، اس طرح سے بھی محبت کا بھرم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو ٹھان لیا کر کے دکھاتے ہیں اسے، ہم نے جو ٹھان لیا کر کے دکھاتے ہیں اسے، اکثر اوقات ہواؤں پہ قدم رکھتے ہیں، اکثر اوقات ہواؤں پہ قدم رکھتے ہیں، اور تیسری دنیا کے بارے میں بھی سوچا جائے، تیسری دنیا کے بارے میں بھی سوچا جائے، ان سے کہنا ہے جو پتھر کے صنم رکھتے ہیں، ان سے کہنا ہے جو پتھر کے صنم رکھتے ہیں، اور دھوپ کے ساتھ ہی ٹھہری ہے اگرچہ نسبت، دھوپ کے ساتھ ہی ٹھہری ہے اگرچہ نسبت، سایہ بننے کا ہنر دیکھیے ہم رکھتے ہیں، سایہ بننے کا ہنر دیکھیے ہم رکھتے ہیں، اور سب کو معلوم کہاں کارگہ شیشہ گری، سب کو معلوم کہاں کارگہ شیشہ گری، یہ بصیرت تو فقط اہل قلم رکھتے ہیں،
ये बसीरत तो फ़कत अहले कलम रखते हैं, मुस्कुराते हैं कभी आँख भी नम रखते हैं, इस तरह से भी मोहब्बत का भरम रखते हैं। हाथ कटवा दिए और पाँव में छाले रखे, हाथ कटवा दिए और पाँव में छाले रखे, आज भी हमने तेरे दर्द संभाले रखे, आज भी हमने तेरे दर्द संभाले रखे, और खाली आँखों में नए ख्वाब सजाने के लिए, खाली आँखों में नए ख्वाब सजाने के लिए, कुछ मनाजिर थे तसव्वुर में जो ढाले रखे, कुछ मनाजिर थे तसव्वुर में जो ढाले रखे, और घर में रौनक रहे और दिल से खुशी दूर ना हो, घर में रौनक रहे और दिल से खुशी दूर ना हो, हमने होली की तरह रंग उछाले रखे, हमने होली की तरह रंग उछाले रखे, और अपने बच्चों के लिए शाम सहर एक किए, अपने बच्चों के लिए शाम सहर एक किए, अपनी ख्वाहिश के सफ़र कल पे हैं टाले रखे, अपनी ख्वाहिश के सफ़र कल पे हैं टाले रखे, और तुझसे बेहतर नहीं कोई ना हुआ ना होगा, तुझसे बेहतर नहीं कोई ना हुआ ना होगा, नाम तेरा लिया और तेरे हवाले रखे, नाम तेरा लिया और तेरे हवाले रखे, और ज़िंदगी एक झुलसते हुए सहरा जैसी, ज़िंदगी एक झुलसते हुए सहरा जैसी, है कोई धूप में जो बर्फ़ के गाले रखे, है कोई धूप में जो बर्फ़ के गाले रखे, और तुम भी करते हो अजब और अनोखी बातें, तुम भी करते हो अजब और अनोखी बातें, खिड़कियाँ खोल दी दरवाज़ों पे ताले रखे, खिड़कियाँ खोल दी दरवाज़ों पे ताले रखे, आज भी हमने तेरे दर्द संभाले रखे। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो किसी मुश्किल से ना गुज़रा हो, और जब तक आप मुश्किलों से नहीं गुज़रते तब तक आपका फ़न निखार नहीं पाता। और फ़न के निखरने के लिए ज़रूरत इसी अमर की है कि आप के साथ जो मुश्किलात का सिलसिला है उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ पैदा करता है। तो मेरे लिए भी आसान तो नहीं, मैंने कहा है कि आसान नहीं, ये रास्ते दुश्वार हैं बहुत। एहसासात के बग़ैर तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, और जज्बात जो आपके दिली जज्बात हैं उनको कैसे समोना है लफ्ज़ों में, वो फिर आपका फ़न होता है। तो जिस तरह आपने कहा कि जो भी लाइन भी बोल देते हैं हम, काम भी कर लेते हैं, और किस तरह से होता है ये आसान वाकई नहीं है। आप ख़ुद सोचें कि एक आम ज़िंदगी में मिडल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर अपना काम, नौकरी के अलावा कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो हम उसी मिडल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर आपको अपना घर भी देखना है, आपको अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, आपको अपने ज़िंदगी के साथी के साथ मिलकर भी चलना है, और आपने अपने वो फ़नकाराना सलाहियतें भी उजागर करनी हैं जो खुदा ने आपको दी हैं। जॉब पे जाना, वापस आना, बच्चों के लिए खाने पकाना, बच्चों की तरबियत करना, उनकी स्टडी में उनका साथ देना, पूछताछ करते रहना, क्योंकि बच्चों की तरबियत
और घर की जिम्मेदारी बाकी तमाम चीज़ों से बढ़कर उस वक्त हो जाती है जब आप एक मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं। और जब तक आपके घर का माहौल साजगार नहीं है तो आप अपनी फनकाराना सलाहियतें भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये आसान काम है भी नहीं है। तो मैंने ये कोशिश की और उसमें फिर बात वही करूँगी कि मेरे हस्बैंड का साथ। सही। अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो ये आसान नहीं होता। लेकिन इसी तरह से कहीं आना जाना, उसके लिए आपको पता है कि आज के महंगे दौर में आना जाना भी आसान नहीं है, और एक शायर के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जहाँ भी आम तौर पर मुशायरे होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो कोई ख़ास आपको माली ताउन नहीं होता है। लेकिन चूँकि फिर वही कहूँगी कि ये इश्क है, सही, ये मोहब्बत है, और अपना इश्क जो है वो इंसान छोड़ ही नहीं सकता है, तो आसान होता ही नहीं है कभी भी। तो उसको भी सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डालकर हम लोग जो हैं इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ इसी काम के लिए नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि अदब की खिदमत अगर हमने की तो हमने इंसानियत की खिदमत की। और जो कोई भी अदबी शख्स है वो कहीं बहुत आगे बढ़कर, कहीं वसी सोच रखकर सोच रहा होता है। वो ये नहीं सोचता कि ये किस फ़िरके का है, ये किस कबीले का है, ये किस मज़हब का है, ये किस शहर का है, ये किस गांव का है, या ये किस मुल्क का है। वो सबके लिए लिखता है। अगर आज हम यहाँ पर अपने निसाब के अंदर देखें तो हमारे निसाब के अंदर 9th मैट्रिक के अंदर बाहर के तमाम शोरा जो हैं उनकी नज़में मौजूद है, और हम वो पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इंसानियत के लिए लिखा है। यहाँ के बहुत सारे शोरा हैं जिनकी किताबें, और जो अदीब हैं जिनकी किताबें बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ़ जगह पर होती हैं। लोग उन्हें पढ़ते हैं, सराहते हैं, और वो किसी एक कबीले के लोग नहीं होते हैं, वो किसी एक मज़हब के लोग नहीं होते, वो इंसान होते हैं और इंसानियत के लेवल पर जाकर सोचते हैं, उनकी मोहब्बत में सोचते हैं। और यही वजह है कि हम अदबी लोग कहलाते हैं, यही वजह है कि हम शायर लोग कहलाते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि जो नकल मकानी का सिलसिला है वो आम मिडल तबके को बहुत सहना पड़ता है। तो हम एक ऐसी जगह पर शिफ्ट हुए जहाँ पर मैंने अपने दिली जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। मैंने ये नहीं है, अल्लाह खुदा का शुक्र है कि हमने किसी की मोहताजी नहीं देखी, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोगों को करीब से देखा तो उनके लिए मैंने ये अपने दिली जज्बात का इजहार अयाज़ किया। वो ये था कि हरी शाखें सुनहरे फूल काले हो रहे हैं, हरी शाखें सुनहरे फूल काले हो रहे हैं, हमारी आँख से ओझल उजाले हो रहे हैं, और खुशी में रक़्स करता ये समंदर खो रहा है, खुशी में रक़्स करता ये समंदर खो रहा है, किनारे जैसे मौजों के हवाले हो रहे हैं। और कभी कलम की नोक पोरों से उलझती जा रही है, कलम की नोक पोरों से उलझती जा रही है, ज़रा देखो मेरे हाथों में छाले हो रहे हैं। और कभी उस झोंपड़ी में शाम को चक्कर लगाना, कभी उस झोंपड़ी में शाम को चक्कर लगाना, जहाँ पर एक रोटी 100 निवाले हो रहे हैं। बहुत करीब से देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी का ये लम्हे, अपनी ज़िंदगी के मैंने बहुत करीब से देखे, जिनको कलम बंद करते हुए भी मेरा दिल रोता है, मेरी आंखें अश्कबार होती हैं। लेकिन ये है, ये हकीकत है जिसको मैं कलम बंद करती हूँ। Once again, thank you so much.